ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर ज्ञान तादात्म्यर ओ भेदर शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करिबा। आमे अर्थात समग्र मानव जाति भेद ज्ञान रे अच्छे, सेपारेटिव नॉलेज रे अच्छे। आमर भवितव्य होची आइडेंटिफाइड नॉलेज को जीवाकू। जेते दिन पर्यंत आमे ए सेपारेटिव नॉलेज रे थिबा सेते दिन पर्यंत अपूर्णता रे रहिथिबा। पूर्णता आड़ को जीवाकू हेले आमको आइडेंटिफाइड नॉलेज आड़ को जीवाकू हबो बा नॉलेज संगे विद्या सहित आमको आइडेंटिफाइड बा एकत्व लाभ करिबाकू हबो। विद्या कहिले अध्यात्म विद्या, आत्मार विद्या, जहा श्रीमद् भगवत गीतार 10म अध्याय 32तम श्लोक श्रीकृष्ण कहउछंती अर्जुन को जे मु हेउछि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मु विद्या भितरे अध्यात्म विद्या। अर्थ सेही विद्या को जीवाकू हेले आमको से विद्या को जीवाकू हेले आमको निज को अतिक्रम करने को पड़िबो। निजर लोयर नेचर को अतिक्रम करने को पड़िबो। सेही कथा एही अध्याय रे विशेष भाव रे आलोचित होईछि। आरंभ करिबा भेददर्शी अविद्यार एई प्रथम अवस्थाटी को आमे तथापि ज्ञानर एक क्रीड़ांगन बोली कहि पारिबा। मात्र से ज्ञान एठारे बड़ सीमाबद्ध होई रही थाए, बड़ भेददर्शी होई रही थाए। हाँ, से कहउचंती आरंभ हैला जोठू सेठू एते पर्यंत आसिला परे मध्य एहा ए वर्तमान स्थिति आमर चेतनार हब स्टेपिंग स्टोन। एहा अवमाननार कथा नुहे, बरं एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा जे एइठारु पुणी यात्रा ऊपर को आरंभ हब। भेददर्शी अविद्या कहिले जहाँ लाइफ डिवाइन रे लिखा होची जे सेपारेटिव इग्नोरांस। इग्नोरांस जो अज्ञानता जी कि सबू भेद सृष्टि करुची। मोर तोर, सीए मु, तांकर आमर, एई जे भेद सृष्टि करुची से होची भेददर्शी विद्या को आमे कहूचु जो जो चेतना। से इग्नोरांस बा से अज्ञानता आमर ज्ञान पाई कि स्टेपिंग स्टोन मध्य हब। अंधार स्टेपिंग स्टोन हब आलोक पाई। किंतु ए जो अज्ञानता भितरे ज्ञान बड़ सीमित संकुचित, ताहा भेल्ड होकर अच्छी माने ओढ़णी युक्त होकर अच्छी, ताहा मुखा पिंधा। अज्ञानता कौन ना ज्ञान मुखा पिंधि पकेले जो अवस्था हुए से अज्ञानता। अज्ञानतारू मुखा खोली गले जो अवस्था से ज्ञान। अंतर्गूढ़ एकत्वर एक शक्ति उपरे प्रतिष्ठित रही ही एठारे विविक्त खंडित सत्तार खेल लगी रही थाए। से भितरे तार एकत्व थिले हैं
ଅହଂ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଆସିଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବ ବା ଏକାତ୍ମ ହେବ। ତାହା ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାଚୀନ ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା। ଆସିଛି ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଧରି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ବିକଶିତ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ହୋଇ ସେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏ ସେପାରେଟିଭ ନଲେଜ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏକତ୍ୱର ଅଭେଦଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କାରଣ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ନ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବା ପାଇଁ, ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିବିକ୍ତ ଆଉ ଖଣ୍ଡିତ ସତ୍ତାର ଖେଳ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିବ, ୟୁନିଟି ଆସିବ ବୋଲି, ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗୃଢ଼ ୟୁନିଟି ଅଛି ବୋଲି ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି। ନହେଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିପରି ନା, ତାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସଂଗୁପ୍ତ ଏକତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କନସିଲ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ସତ୍ତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଇନର କନେକ୍ସନ୍ଟା ବଡ଼ କ୍ଷୀଣ, ସେ କ୍ଷୀଣ ଇନର କନସସନେସ୍କୁ ବୃହତ୍ତର କନସସନେସ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, ଠକାମି, ମିଥ୍ୟା, ଏ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ। ତାହାଫଳରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଏକତ୍ୱର କେବଳ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ, ଭେଦଦର୍ଶୀ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଏକ ସଂଗୁପ୍ତ ଏକତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବଡ଼ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛୁ, ବା ଯାହାକୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପଦ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କରି ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଏ ଜୀବନ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା କେତେ ଜନ୍ମର କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବାକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣି ଆସିଲାଣି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ
केते बाट अतिक्रम करिवो जानि नाहु किंतु यात्रा को अव्याहत रखिबाकू पड़िवो। अहं ए यात्रा को विरोध कलाणी। अहं जी कि एते बाट आनिला, जी एते बाट आनिला तथापि एते बाट आनिछि कारण विविधता तार कार्य, वैचित्रमयता तार क्रिया, अहंग्र सत्य नहले सबू एक प्रकार होई थांता जो भितरे कौनसी प्रकार नथांता नथांता किछि किछि गोटे मौलिकता नथांता, सबू समान ही थांता, सबू फूल समान ही थांता, सबू बासना समान ही थांता, सबू स्वाद समान ही थांता। तेणु विभिन्नता आनिबा अहंग्र काम, किंतु जेतेबेले आउरी अधिक चेतना विकसित होबाकू चाहिलाणी, इनकनसीएंट रु कनसीएंट बाट दे आउरी से आग को जीव चेतना, किंतु वर्तमान स्थिति रे अहं ताको अटकौछि। प्राणिक स्थिति रे थिला बेले जेते अटकाई नथिला बा प्रायतः अटकाउ नथिला, मानसिक स्थिति को आसिला बेलकू ताहा बेसी अटकौछि कारण तार प्रभाव अधिकरु अधिक अनुभूत हेउछि। जोथि पाई कि कुहा जाउछि, माँ कहउछन जे श्री अरविंद कहउछन जे ईगो वाज द हेल्पर। एते बाट आनिछि किंतु वर्तमान से बार हेकरी से गतिरोध करुछि, आग को न जीवाकू से बाट रुकुछि। एतिके बेले आमर काम होउछि अहं को चिन्ही से प्रत्याख्यान समर्पण के अभिप्सा के विश्वास श्रद्धा माध्यम रे आग को जीवाकू। सेपारेटिव नॉलेज आणुची किए, आत्मा आणु नहीं, अहं आणुची। एई कथाटाकू आमे आइडेंटिफाइड नॉलेज रे परिणत करिबा पाई प्रयास करिबा दरकार। जो कथा माँ बहिर द्वितीय अध्याय रे लिखा है जे व्यक्तिगत प्रचेष्टा एकांत आवश्यक। कौन पाई आवश्यक ना अहं को अतिक्रम करिबाकू, अहं को रूपांतरित करिबाकू माँ को प्रार्थना करिबा पाई सेथिरे कुहा जायछि एवं सेइथिरे अछि जे भगवान ही साधक, भगवान ही साधना। कारण अहं को अतिक्रम करिबा एक साधनार कथा। से साधना मनीष द्वारा निज शक्ति बल रे हबनी, ताहा केवल मांकर कृपा एवं शक्ति द्वारा हब। मात्र आमको व्यक्तिगत प्रचेष्टा करिबाकू हब। भेददर्शी ज्ञान रु अभेददर्शी ज्ञान को जीवा पाई प्रयास करिबाकू पड़िबो। जो कथा एही अध्याय रे परिपूर्ण भावरे परिच्छन्न भावरे पूर्ण भावरे प्रकाशित होइछि। अविद्यार एक प्रत्यक्ष संस्पर्श द्वारा लाभ करा जाउथिबा एई ज्ञान हेउछि चेतनागत सेही उच्चतम अति प्राकृत मानस भूमि गुड़िकर प्रधान लक्षण। प्रत्यक्ष संस्पर्श आसिले से दिव्य चेतना बा आत्मा सहित बा चैत्य सत्ता सहित आसिले कौन हो ना यही ज्ञान हूँ चेतनागत एक उच्चतम अति प्राकृत मानस भूमि सुप्रा फिजिकल मेंटल प्लेन्स बोली कहते। सेठी आमे पहुँची पारिबा। आमे वर्तमान कोठी अच्छु ना अच्छु गोटे कॉमन माइंड रे, कॉमन मेंटल प्लेन रे अच्छु बा जहाँ को आमे कहूचु जे फिजिकल माइंड रे अच्छु। भौतिक मानस स्तर से स्तर रु उठिबा को पड़िबो। उठी किंतु काहे के उठी होउनी ना अविद्यार एक प्राचीर द्वारा आमर बहिस्तरीय सत्ता लगी से सब भूमि अंतराल होई रही। आमे से उच्च भूमि को जाई पारुनो कारण इग्नोरांस आम भितर अच्छी। कौन इग्नोरांस ना 7 प्रकार इग्नोरांस आम भितर अच्छी बोली दिव्य जीवन ग्रंथ रे
କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହେବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇ ଜୀବନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଶେଷ ଏଇ କଥା ଭାବିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ ନ କରିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଚଳଉଛି ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନ ଭାବିବା, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବାରୁ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ବେଢ଼େଇ ରହିଥିବାରୁ ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଜଡ଼ାତୀତ ମନର ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଜଡ଼ର ଅତୀତ ଅର୍ଥ ଟିକିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଟିକିଏ ସବ୍ଲିମିନାଲ, ଟିକିଏ ଆଉ ଅଧିକ ଅତି ଜଡ଼ ଯେଉଁ ମନ, ଆମର ଯେଉଁ ମନ ସେ ବଡ଼ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଭୌତିକ ମନ, ବଡ଼ କମନ ସାଧାରଣ ମନ, ଯିଏକି ଜମାରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେନି। କିଛି କଥା ରିଜନିଂ ଦେଇ ହୁଏତ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଦେଇ ବୁଝିବା ହିଁ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ପାରେ ନାହିଁ ଆମର ଏ ସାଧାରଣ ମନ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ସେ କଥା ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା, ବୁଝି ହେବ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାହା, ତେଣୁ ଜଡ଼ତୀତ ମନର ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମି, ଆମେ କ'ଣ ଜଡ଼ର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନାହୁଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଣିଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଟକିଂ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଆନିମଲ୍, ଯିଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଏତେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆନିମଲଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛି। ଟିକିଏ ସୁବିଧା ତ କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ପାଦ କ'ଣ ବହୁ ଅଂଶ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ପଶୁତ୍ୱ ଭିତରେ। ଲୋଭ ବି ପଶୁତ୍ୱ, କ୍ରୋଧ ବି ପଶୁତ୍ୱ, ହିଂସା ବି ପଶୁତ୍ୱ। ଆଉ କଥା ତ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଶୁଠାରୁ ଆସିଛି, ଖାଲି ଆସିନି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ କବି କହିଲେ, ସମୟ ପାଇଲେ ଜୀବନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଫୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଆସି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ଜିତ କେ ଅଛି ଜଗତେ, କି ଗୃହୀ କି ବନବାସୀ। ସୁବିଧା ପାଉନି ବୋଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଉଛି। ଆଉ ସୁବିଧା ଟିକିଏ ମିଳିଲେ ସେ ଯେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହେବ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ହିଂସ୍ର ହେବି, ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଲୋଭୀ ହେଇପାରେ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ମୂଷାଟିଏ ଥିଲା ନା ଲୁଚି, ଖାପ୍ କିନି ବାହାରିଲା, ଫାଙ୍କ ଟିକିଏ ପାଇଲା କ୍ଷଣି। ତେଣୁ ଅତି ଖର୍ବାକର ଭାବରେ ସେଠି ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଳନ କରିନି। କ'ଣ ସେ ଡେଫିନେସନ୍? ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ବା ପ୍ରାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଏହା ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଏବଂ ଉପକରଣ ଆଣିଦିଏ ସେଥିରୁ ବୈରାଗୀ ପରି ମୁଖ ସଙ୍କୋଚରେ ଫେରାଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜସିକ ଆସକ୍ତି ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। ରାଜସିକ ଆସକ୍ତି ପୋଷଣ ନ କରିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗୀ ପରି ମୁଖ ନ ଫେରେଇ ନେବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ମିଶି ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର କିଛି ଅଂଶ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୈରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ନମସ୍କାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼ିବ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ନଥାଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଥାଉ। ମାତ୍ର
ଖାଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାର ସମାନ। ଯାହା ମଣିଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନର ଅଧିକାରୀ ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ରହିଛି, ରହିପାରେ। ହଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ତା ସବୁ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ମନ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗୁପ୍ତତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତତାରେ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ଏ କାମ କରିପାରିବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଆମର ଅଧିଚେତନ ସତ୍ତା ଲାଗି ଏହା ହିଁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସାଧନ। ସବ୍ଲିମିନାଲ ସେଲ୍ଫ, ଅଧିଚେତନ ସତ୍ତା। ଆମ ସତ୍ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ଅଧିଚେତନ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସତ୍ତାକୁ ଅଧିଚେତନ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଯେତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ସିଏ ବି ଏକ ସାଧନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଲୋଭ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ପ୍ରବଳ, ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରବଳ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ, ଦି ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ, ତାହେଲେ ଲୋଭଟା ଥିଲାରୁ ସିନା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଲୋଭଟା ହେବ। ଆଉ ମୂଳରୁ ନଥିଲେ, ଆବେଗ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାବାବେଗ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ସବୁକୁ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିଦେଲା, ଘୃଣା କଲା, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଭାବ ପାଇଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ଭାବକୁ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାଟା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ରହିଯିବା, ଅଟକି ଯିବା କଥା କୁହାଯାଉନି। ଇମୋସନରୁ ଫିଲିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାବକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାଧା କ'ଣ? ମହାଭାବମୟୀ ଚେତନା। ମହାଭାବମୟୀ ଚେତନା, ଭାବମୟୀ ଚେତନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୂଳରେ 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 ଭାବ ନାହିଁ। ଆହୁରି 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 ମୂଳକୁ ଗଲେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀରାଧା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି, ଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀରାଧା ମହାଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରାଧାରାଣୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଘନଶ୍ୟାମ ଗୁଣମାନ ରଖିଛି କି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋମାନ ସଜନୀ ଗୋ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତୁଚ୍ଛ ବୋଲିବା ମୁନିକି ଅଳଙ୍କାର ପଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମୁନିକି ସଜନୀ ଗୋ। ଅଳଙ୍କାର ସେ ତ ବନିକି ସଜନୀ ଗୋ କହିଲେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ସଖିକି। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଅକୁଳାନ ହେଉଛି। କହିଲେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲିବା ମୁନିକି, ମୁନିକି କ'ଣ କହିବା? ମୁନି ତ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ବୈରାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ସଜନୀ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି, ସେ ତ ଏ ଅବନୀର ଅଳଙ୍କାର।
ए प्रकृति विश्व प्रकृति तांको धारण करिछि अलंकार भाव रे आ मु किए मु केडे तुच्छ। राधा कहउछन्ते कथा जे महाभावर अधिकारिणी। तेणु अधिचेतन लगी यही ज्ञान दरकार किंतु ताको अतिक्रम करवा दरकार। सेपारेटिव नॉलेज न हेले आइडेंटिफाइड नॉलेज आसीबनी। मु भाव न रहिले आमे भाव आसीबनी। आमे भाव न रहिले से भाव आसीबनी। तेणु मोरु से पर्यंत जीवाको हब, मोररु तांकर पर्यंत जीवाको हब। जेते दिन पर्यंत जणे न जाइछि सेते दिन पर्यंत एमती आसिकी पंक चकटिकी नली गोड़ बिंधा करिवो। सेठु विश्राम नब पुणी आसिबो, पुणी पंक चकटिबो, तापर नली गोड़ बिंधिले पुणी जीव, पुणी से टिके बिंधा बिंधी कमिगले पुणी आसो। पंक भरी पंक सदाबले अच्छी, पंकर असुविधा किसी ना, खाली चकटार अच्छी। किए केते चकटिब, जी जेते चकटिब तार सेते नली गोड़ बिंधा हम, ताकू सेते बेसी समय रहा पड़ो बिंधा कमेवाई। बुझी हो कहीं से विश्राम नाकू से प्राण जगत पारी हवा कष्ट, कारण बिंधा बेसी होतिबो। बिंधा न कमिले केबे ऑपरेशन हबनी। दांत बिंधा न कमिले डाक्तर केतेबेले ऑपरेशन, दांत जमा उपड़ा हबनी, इन्फेक्शन हो जिवो। तेणु जार जेते नलीगोड़ बिंधा से सेते दिन सियाड़े रहिबो। आउ ताकू टिके टिके मेडिसिन दिया होथबो, से भल हेले पुणी चंग चंग हब आसियो। कौन पाई आउर गोटे पंक ताकू टाणिब, तार चेतना ए कारण अधिचेतन सत्ता अर्थात अंतर्गत सत्ता ये सब उच्च भूमि रु अवचेतन भूमि पर्यंत प्रक्षेपित हो रही। सी केमिति ना जेमिति झरणा एमिति झरे तलु ये उपरु तलकू झरणार ए बागरे जीवाक पड़ुची, से बागरे आसीची भारी निशुणी ओह्लई आसी। वर्तमान निशुणी पुणी चढ़ीवा पड़ुची। सीढ़ी ओह्लैवा अपेक्षा सीढ़ी चढ़ीवा सहज ना कष्ट? वर्तमान से अवस्था आसी। सीए ओह्लई पड़ती बेस, बर्तमान सीए चढ़ुंट जे हेले मध्य सी चढ़ाटा आम अनुभव करूँ। भावुच आम निजे चढ़ा पड़ो। तेणु आमको लगुच कष्ट एवं कष्ट मध्य आम पाई तांकु आमे समर्पी देले निजकू, से नहीं जाते हाथ धरी सहज लगता। आम जेहेतु निज उपर निर्भर कर चढ़ा चाहूँ, तेणु आमको नेचुराली कष्ट लगुच। अवचेतन भूमि उपर प्रक्षेपित हो रही, से सियाड़ू एमती पड़ी बोली आड़ू जाई होची। माछ माने ना से ऊपर को उठी आसती, कहीं से माने कोठी हेले तलू को आसचंती बोली, तलू से ऊपर को ही उठंती, कारण से सेठु आसीचंती बोली से ऊपर को जावाक चाहूँगी। सूर्य ठार आलोक आसीची बोली कि दीप सियाड़ी की जावाक चाहूँगी। तेणु से सत्यवा उत्तराधिकार सूत्र पाई तार उच्च भूमि गुड़िकर चेतनागत लक्षण बलवत्तर रही। तेणु ता भितर से उत्सरू आसी से सियाड़ी की जावाक चाहूँगी। इंद्रिय माने भूल नुहंती, मात्र तांकर काम होउची बहिर्जगत संपर्क रे ज्ञान मान धारणा दबा। सेइथिरु जने अंतर्जगत आड़कू जीवाकू प्रेरणा पाइब, मार्गदर्शन पाइब बोली इंद्रिय मानंकु बाहर को दिया है। श्री अरविंद कहउछि जदि इंद्रिय माने नथान्ते ताहले मनीष पंगु अथर्व जड़ पत्थरटीए तो पत्थरटी हो रही था। आखिटी थिलारु केते रूपसज्जा रंगसज्जा देखिबारु
आहुरी अधिक देखा इच्छा करते प्रयास जारी रखिबारु से अंतर्दृष्टि संपन्न होबाकू चाहूँछि। कानटी थिबारु से आउ किछि से मुरलीर स्वन शुणिबाकू चाहूँछि। गोपी मानकर कान ये भौतिक कान को अतिक्रम करिथिला बोली से सेई स्वन शुणिकी स्वतंत्र भावरे ता द्वारा प्रलोभित होउथिले। तेणु सेई भली कान को सेमति जदि कानटी नथिबो ताले किछ तो शुणिबार सामर्थ्य नथिबो, से तो शुणिबा गोटे कौन कथाटे जानी नथिबो, से दिव्य स्वन शुणिबा को कल्पना करिबो किपरि। पद्म फूल जदि से देखि पारु नाही ताले पद्म पाद अछि बोली से कल्पना करिबो किपरि। तेणु पद्म फूल कौन ताकू पद्म पाद कल्पना करिबारे सहायता कलानी कि। तेणु आखि नाक कान एमान सब भूल नुहंती, किंतु एमाने उद्दिष्ट होइछंती भितुर को नबाकू, जो कथा एही अध्याय रे अति स्पष्ट भाव श्री अरविंद कहउछंती। यही सत्ताटी सहित अंतरंग संस्पर्श और आत्मीयता हेतु से सब उच्चभूमि एक निबिड़ संयोग रही, निबिड़ संयोग अच्छी, बाहर सहित भीतर संयोग अच्छी। मझिरे गोटे बाड़ पकई देछि अहं, पाचिरी पकई देछि। बाहर दृष्टि भीतर दृष्टि भितर गोटे अहं पाचिरी, बाहर शब्द ग्रहण और भीतर शब्द ग्रहण भितर अहं गोटे पाचिरी। से पाचिरीटा को भांगिले कि पाचिरीटा को अतिक्रम कले बाहर भीतर समान हो। भीतर को गले जे बाहर आखि न रहिबो एक कथा नुहे, किंतु बाहर आखि जेपरी दृश्य देखुची आ सेपरी दृश्य देखिबो नाही, से आउ प्रकार दृश्य देखिबो जो प्रकार दृश्य गुड़ाकर प्रेरणा आसीबो भितुरु। भीतर दृष्टि खोली गले ये सब जीवंत लगे। जहाँ को श्री अरविंद कहूले पचारे आप भगवान देखते ना, हाँ ये टेबुल जमती सेमती भगवान देखुची ना, भगवान केमती पाई हो विश्वास 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 ना, विश्वास को केमती धरी रखी हम अभ्यास अभ्यास अभ्यास। श्री रामकृष्ण को पचारे कहले आप भगवान को देखते ना, हाँ एमती यही तो भगवान को देखुची। से जो ताकर ए आखि कौन ए आखि नुहे, ए आखि तो आम देखी पारनु, से केम देखिले, से तो से मनुष्य शरीर। से जो भीतर कथा भीतर बाहर तंकर समान हो जाइछि। आ काहे समान होइछि ना, से सब इंटर कनेक्टेड जे मझिरे गोटे पड़छि पाचिरी, किए पकईछि अहं। आम बाह्य सत्ताटी उपरे आमर विचार करी बसिले आमे हेउछु परम निश्चेतनार संतान, इनकनसाइंसर चिल्ड्रेन बोली लिखुचंती। आमे आसीचु कोठु, से निश्चेतनारु आसीचु। से घाट देकिरी आसी थिबारु से घाटर जेतेक मौलिक उपादान ताकू आनीचु। अर्थ नदीटी जेतले गोटे घाट अतिक्रम करे, से घाटरे जदि तंबार अंश अधिक थाए ताले आग को गला बेलू से पानी परीक्षा कले तंबा अंश अधिक बाहर। आमे जेहेतु निश्चेतनार बाट दे आसीचु, ताकू सांगेरे धरी तार केतेकांश निश्चित भाव में आनीचु। तेणु निश्चेतनार संतान आमे, आमर अंतर्सत्ता ही आमको मन प्राण और चिन्मयतार उच्चतर शिखर भूमिगढ़ उत्तराधिकारी करी पारिछि। अर्थ आमर जो अंतर्सत्ता इनर सेल्फ अच्छी, से इनर सेल्फ आमको माइंड लाइफ आउ स्पिरिट ये तीनटा कथा देइछि। स्पिरिट होछि चिन्मयता अर्थात चेतनामयता, से भावटा आमको देइछि। आम भितर किछि चेतना अच्छी, जी कहूची
जे ये जेते जेते कथा सबू मिलूची इंद्रिय मानक द्वारा ए सबू कथा जाक यथेष्ट नुहे आउरी किछि कथा पाइबाकू अच्छी तोर तू आसीचु सेइथि पाई बोली केउ एक चेतना कहूची न कहिले आमे एठिके आसंते नाही शुणिबाकू श्री अरविंद पाठ बा जो माने जो भगवत चिंतारे अछंती चेतनारे अछंती भगवत कार्य भी करुछंती से माने गोटे चेतना द्वारा करुछंती एवं ता सहित माइंड और लाइफ मध्य तम सहयोग करुछंती उत्तराधिकार सत्य आमे जेतिकी जेतिकी भीतर आड़ को उन्मोचित हो जाउथिबा आमे जो कथा आलोचना करुथिले आपणा भीतर को जाउथिबा ओ आपणा भितरे वास करुथिबा एवं आपणा भितरे रहितबा संपद गुडी को ग्रहण करिवार समर्थ होउथिबा आम निश्चेतन उत्पत्ति मूलटीर अधीन होई रहिबार दशारू आमे सेतिकी सेतिकी मुक्त होई जिबारे लागिथिबा एई होउची श्री अरविंदकर असल मार्गदर्शन जो कथा प्राचीन धारारे एते मिलिब नाही प्राचीन धारारे मिलिब कौन ना यही सबू निश्चेतनार भूमि गुड़िक बड़ जंत्रणादायक ओ अंधार रे परिपूर्ण ठीक प्राचीन धारा पाई भी सत्य श्री अरविंद धारा पाई भी सत्य किंतु सेमाने प्राचीन पंथारे प्राचीन धारारे ताकू आज इटी छाड़ी देई से निश्चेतनार भूमि को बाद कर देई प्राण मन और शरीर जो चेतना अच्छी साधारण चेतना निश्चेतना जो से निश्चेतना को बाद देई केवल पूर्ण सचेतनतार सहित आत्मा को परमात्मा को भेट करैबा आत्मा परमात्मा एक हो गले प्राचीन जोग सरिला श्री अरविंद जोग ताहा नुहे कहीं अतिमानस शक्ति जीए ये सबू भितरे संगुप्त भाव अच्छी से संगुप्त अतिमानस शक्ति को उन्मुक्त करवा श्री अरविंद जोगर लक्ष्य बोले निश्चेतना भितर अच्छी अति चेतना पत्थर भितर भी सुपर माइंड अच्छी सुपर कन्सियसनेस अच्छी कोइली भितर भी अच्छी कुआ भितर अच्छी गछ भितर अच्छी मनुष्य भितर अच्छी किंतु इति निश्चेतना भितर सेमानक भितर अच्छी टिके चेतना भाव में मनुष्य भितर अच्छी किंतु संगुप्त होकर अच्छी से कथा को उन्मुक्त करवा दरकार जो कि गुरु शास्त्र काल उत्साह चारि कथा दरकार आम जाने बुझा दरकार नहीं जो कि अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण विश्वास श्रद्धा ये सब दरकार जेहेतु पूर्ण जोगरे ये संगुप्त कथाटा को उन्मुक्त करिवार अछि जोटी संगुप्त कथा उन्मुक्त करिवार आवश्यकता नाही सेठी ए सब कथा दरकार न पड़ी आर कथा सब सब दरकार अछि उपवास व्रत नहीं भूल नहीं से भी बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा से मार्ग बड़ प्रशस्त से मार्ग बड़ प्रशस्त मार्ग श्रीराम ताको बहुत गुरुत्व देइछंती किंतु कहउछंती मु ताको गुरुत्व देइछि सत मात्र से बाट मो बाट नुहे मु एक नुआ रास्ता तैयारी करिछि जदि सेई बाट मो बाट हेई थांता ताले मु एते कष्ट करि न थांती मु एक नुआ मार्ग करिछि तैयारी पा नुआ मार्ग माँ कहउछंती ए बाट आगरु फिटी नथिला तेणु यह उद्घाटित होई नथिला तेणु केही ए बाटरे आगरु चाली नथिले जोथिपाई कहउछंती माँ जे ए बाट होउची प्रथम बाट जो थिरे केउठी को न जाई किछि न छाड़ी दिव्य जीवन लाभ करवा श्री अरविंद कहउछंती वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स have not done we are not here to do what others have done तेणु आमे पुरातन मार्ग को आउ थरे ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल नुहे यह गोटे अलग वाइन न्यू वाइन इन न्यू बॉटल
वाइन सामान अच्छी वाइन किसी ठीक अच्छी जे किंतु एटा न्यू वाइन बटल भी बटल आ बटल ना कौन बाल्टी अच्छी बटल रे अच्छी किंतु बटल नुआ तेणु यही पाठ तेणु भारी भल लगे जदि बुझा आम नहेले मिसई मिसई देले रामचरितमानस सहित गोलमालिया धर कि बुझी हेनी भीतर आड़ को तेणु आम भीतर को जावाक आसीचु आखि द्वारा कान द्वारा नाक द्वारा भीतर को जावाक आसीचु जदि इतनी सुंदर बासना होची मल्ली फूल खरा दिने इतनी सुंदर बासना होची गंगशिउली फूल शरत ऋतु रे इतनी सुंदर बासना होची जुई फूल ओह ये बासना जी तैयारी करिची जहाँ मगजरू ये बासना तैयारी होची सी केड़े केमती हिथिबो से केमती ताकू मु थरे आघ्राण करती नहीं यही होची नाकर करामती प्रोवाइडेड जड़े भीतर को जावाक चाहूथिबा दरकार आखिर करामती कथा तो आम कहूले जीभर करामती कथा सेमती हो एमती जदि एत स्वाद पिता कषा खटा मिठा केते प्रकार स्वाद जीए ए स्वाद को खाली भावी नाहंती ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड आग भाविले ना एक होम बहुश्याम मु एका अच्छी सब हाँ ही इज द वर्ल्ड केमिति हेले आग भाविले जे मु एया हेबी तापर हेले जी जार भावना एडे सुंदर तार स्वरूप केड़े मधुर होइथिबो मने पड़ुची गंगाधर लेखार भारी सुंदर कथाटी अच्छी देखी दौरान शकुंतला दुष्मंत को से फेरीगले तापर बस भावुंट कहले दर्शन जार एड़े सुमधुर परस केड़े मधुर भाविले बुझी हम बुझिले भल लगे हाँ रसिक नहेले ये कथा जहाँ उपेन्द्र भंज कहले रसिक होइले ये रस बुझीब उपेन्द्र भंज कही ना आउ ठाए कहले उपेन्द्र भंज कथा मुझे कहूँ आगर कहती गंगाधर मेहर कथा शकुंतला भावुंट जे दर्शन जहाँ ये भल लगिला ता स्पर्श केटे भल लगे सेमती यही कथा हूँ इनर वर्ल्ड को जीवार चिंता जहाँ भितर आसब सी जापर किंतु आउटर वर्ल्ड इते आकर्षण से आकर्षण को श्रीअरविंद अन्य जगह लिखते वृथा आकर्षण हो पारे किंतु ता भीतर महत्व अच्छी जे ताकू जदि महत्व काम लगा जाई पारिबो नहले तो वृथा ही रही आकर्षण शब्दटा ठीक गोटे वृथा आ गोटे यथार्थ सेटा बदल तार एडजेक्टिवटा बदल नाउनटा रहिबो आकर्षणटा रहिबो हाँ आकर्षण रहिबो ताहा ही पाठ आ बुझिले ना की पॉइंट गुड़ा बहुत भल लगे ए पाठ आगुरी आसी नथिला श्री अरविंद माँ प्रथम करी कथा आनिले अधीन हो आम कौन निश्चेतनार अधीन रे अच्छु ना आमको कौन गोटे देखिले लोभ लगुच आमको कौन टिके मतांतर हो गले क्रोध आसुची मतांतर हो गले क्रोध आसुची यही कथा गुड़िक कहीं ना आम निश्चेतना भितर अच्छु तेणु एठारे वर्तमान आम अविद्या लगी जहाँ सब अतिचेतन हो रही ताहारी आड़ को अग्रसर होउथिबा आमे निश्चेतना पाई कि जी अतिचेतना अच्छी अर्थ जेते जेते कथा आउता ऊपर को अच्छी बहुत बहुत कथा अच्छी सेतिकी सेतिकी कथा आड़ को आमे जाउथिबा केते बेले ना जेते बेले आमे निश्चेतनारू मुक्त होउथिबा निश्चेतनारू केते बेले मुक्त होउथिबा ना जेते बेले आमे भीतर आड़ को जाउथिबा आमे आसीचु
बाहरु भितरकू जीवा जी बाहरे रही रही जन्म जन्मांतर बीतेई दौची ता जीवनर विशेष किसी अर्थ नहीं माँ को धारारे बा आमर आध्यात्मिकतार धारारे द एम ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द डिवाइन एंड टू रियलाइज द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन बोली माँ कहले तीनिटा काम रे आम आसीचु ना चाकरी करिबु कि नहीं करिबो माण बसैबु कि नहीं बसैबो महाप्रसाद पाइबु कि नहीं पाइबो आम नोट भल कि दिथर तीन थर गणिबु कि नहीं गणिबो नाती को काखेबु कि नहीं काखेबो असुविधा कौन असुविधा नहीं असुविधा अच्छी कौटी सेटा बुझा दरकार असुविधाटे अच्छी से जो प्रकार बहिर्मुखीनता जो आकर्षण से आकर्षण मोहरे परिणत हो जाउछि भाई आकर्षण भूल नुहे कौन नाती प्रति आकर्षण रही धन प्रति आकर्षण रही से आकर्षण कौन होउची लक्षण रेखा सांगे सांगे डेई पड़ुची आमे जानी पारुनी कौथरे परिणत होउची मोह आसक्ति रे परिणत होउची फल रे असुविधा होउची सीए बाहर बुलाउची बुले कि नळीगोड़ बिंधा सेई करौची मोह करौची नळीगोड़ बिंधा आकर्षण करांतानी तेणु ताहारी आड़ आमे जेतिकी जेतिकी जाउथिबा भितुरु को सेतिकी सेतिकी आमे प्रकृत रे पाउथिबा से विस्तृतिर अनुभव पाउथिबा गभीरतार अनुभव पाउथिबा सुख बदल रे आनंदर अनुभव से प्रकृत रे जीवन को अनुभव करिवार आसीबार जो यथार्थता को अनुभव करुथिबा जहाँ कहगला जे जन भजई कृष्ण से बड़ चतुर चतुर लोक माने भितर को जीवाकू चाहती साधारण लोक माने बाहरे बुलंती धन एतिक है आउ केमिति हबो क्षमता एतिक मिलिला आउ केमिति मिलिबो जस एतिक मिलिला आउ केमिति मिलिबो ताकू एमिति असुविधार पकईले आउ केमिति अधिक असुविधारे पकेइबी से बाहरे बुली बुली नळीगोड़ बिंधा भितर को जीवाकू इच्छा कले आउ एत बिंधिबनी गोड़ पाद एत बिंधि हेबनी तेणु आमर आजिर निष्कर्ष आलोचनार हेला जो सार तत्व जे बाहरु भितर को जीवा आमे आसीचु बहिर्जीवन रु अंतर्जीवन को जीवाकू बहिर्मुखीनता को अंतर्मुखीनता को जीवाकू बहिर्प्रकाश रु अंतः प्रकाश को जीवाकू सर्वोपरि बाहरु भितर को जीवाकू ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।